In our previous videos, in our previous tutorials, we have completed till now that how can we work with the looping control statements, right? How can we work with the conditional statements? So such things we have covered till now. Okay. Our next topic is regular expression. Our next topic is regular expressions, which is a very important topic, right? Sir, why do we use regular expressions? What will be the impact of regular expressions? Will you please describe? Yes sir, just in कुछ ही सेकेंड्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक कीवर्ड को डिस्कस करना चाहता हूँ. दैट इज़ व्हाट आर delete keyword, that is what are del keyword, right? So people are used to ask you that what is the difference between del keyword and none keyword, right? So that is what your question is. So try to observe it. If we say that what will be the difference between del keyword and none keyword, so observe it sir. See, your keyword will be like del keyword, okay? Del, del, that is what our keyword is. इस del keyword के अंदर सपोज हम अगर बात करते हैं, like you have written here x is equal to 10. So if I'm going to ask you, can you please respond what will be the id of this x? You will say something. It means if x is getting some id, which means x is being represented like an object, राइट? यस सर, x जो है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह अवेलेबल है. अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह अवेलेबल है, मैं आपसे बोलूँ कैन यू प्लीज़ प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस x, योर आंसर विल बी 10, राइट? ओके. नेक्स्ट मैं अगर आपसे बोलूँ कि सपोज in future I want to make it like x plus 30, so your answer will be like 40. Good, great. What if sir I am going to write it here del of x, like मुझे आगे कभी इसका x का रिक्वायरमेंट नहीं है, so can we write it like del of x? So I have written here del x. So what does it mean? What does it mean? Sir, the x object will be destroyed. The x object will be destroyed. Now if I am going to use this value as a x, you will see that name x is not defined. नेम x इज़ नॉट डिफाइंड. अच्छा, यानी x आपका वर्क ही नहीं कर रहा है. ओके, मे बी देर विल बी अ प्रॉब्लम. ऐसा कर लेते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं. सी अगेन इट इज़ सेइंग सर x इज़ नॉट डिफाइंड. वाई? यानी कि जो रेफरेंस अवेलेबल था ना x, जो x नाम का आपका रेफरेंस अवेलेबल था, अब वो नहीं बचा हुआ है सर. क्लियर? सो इट मीन्स डेल कीवर्ड किस लिए काम करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए. इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट क्या होता है? डेल कीवर्ड का बेनिफिट क्या है? सी डेल कीवर्ड विल प्रोड्यूस दिस डेल स्टेटमेंट. दिस डेल स्टेटमेंट विल प्रोड्यूस a very good memory utilization, right? Memory utilization. क्यों? क्योंकि अननेसेसरली अगर आपके पास कोई फालतू का स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो फालतू में किसी स्पेस को कवर कर रहा है, सो उस स्पेस को हटाने के लिए, उस स्पेस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? डेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है. आई होप आप सभी लोगों ने जावा में भी देखा होगा. जावा में कैसे वर्क करता है? जावा में सर वर्क करता था लाइक आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते थे वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते थे. बट किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होते थे? किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होते थे? आप में से कितने लोग हैं सर जावा वाले? प्लीज़ रेस्पॉन्ड. यस, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स इन जावा? Garbage collector. Very good, right? So in Java garbage collector was basically used. Good sir. Okay, so this was, but होता तो ऑटोमेटिकली ही डिलीट था ना. वैसे ही यहाँ पर पाइथन में अगर आपको ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है, देन वी आर यूजिंग दिस डेल स्टेटमेंट, राइट? गुड सर. ओके, आफ्टर दिस वन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर इन C programming, in C++,
Yes, who was responsible? Who was responsible to destroy the object? By that time, destructors were responsible, right? Destructors were responsible to destroy an object, और इसके लिए तो कोड भी लिखना पड़ता था, है ना? खैर, हम लोग सर यहाँ से वापस आते हैं. ओके, एंड सी, सो दिस इज़ व्हाट योर डेल कीवर्ड इज़. Now there is also one interview question which is being asked to you all, that sir, can you please describe what will be the difference between this del statement versus this none statement. Del statement versus this none statement, what will be the difference? So try to observe it. See, जो आपका del statement है, del statement तो ऑटोमेटिकली वैसे ही खुद ही क्या है सर, del किसको रिप्रेजेंट करता है? del जो आपका जो स्टेटमेंट है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है. बट ये जो आपका नन है ना, नन इज़ एक्चुअली एक वैल्यू है, नथिंग टाइप ऑफ वैल्यू, राइट, विच मीन्स नथिंग. बट इवन फिर भी ये किसी ना किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लाइक नन वैल्यू. ओके, आई वुड से सर नहीं समझ में आ रहा है. ओके, कैन यू सी व्हाट विल बी द आइडिया ऑफ एक्स? सी समथिंग, इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज़ व्हाट? एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ एक्स? एक्स इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट. अगर x आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में कोई नन वैल्यू असाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है यस देयर इज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. बट व्हाट इफ आई एम गोइंग टू राइट इट हियर डेल ऑफ x, सो व्हाट डज इट मीन कि सर x जो आपका एक ऑब्जेक्ट था जिसमें कोई वैल्यू नहीं थी, फिर भी ऑब्जेक्ट तो था, बट द मोमेंट आपने लिखा डेल स्टेटमेंट ऑफ x, नाउ इफ आई एम सेइंग सर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, इट इज सेइंग सर x इज़ नॉट डिफाइंड. सो क्या हुआ? इसने उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को ही फिनिश कर दिया हुआ है. क्लियर सर? सो दिस इज़ व्हाट अगेन वन मोर थिंग विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑल. ठीक सर? ओके, आफ्टर दिस वन लेट्स सी. ठीक है, सो ये जो आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बचा हुआ था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया था. So that's why it's been done, sir. Okay, I hope you all are able to understand the difference between del and this none. ठीक है सर? Yes. Any doubt to anyone? Okay, ठीक है. Now, sir, moving further. Now we are trying to discuss about the main topic, which is what your regular expressions, right? So we are going to discuss about this one. So regular expressions आपका कैसे वर्क करता है, क्या है? Try to observe it, sir. रेगुलर एक्सप्रेशंस, राइट. सर, रेगुलर एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले या हम अगर बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की, सर क्यों इम्पोर्टेंट है, या ये रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली इस्तेमाल ही क्यों होता है? रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली इस्तेमाल ही क्यों होते हैं? सो इफ़ यू टॉक अबाउट सर, दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस आर बीइंग यूज्ड टू create a pattern, or we would say regular expressions are used to check patterns, right. sir, मतलब सर, अच्छा पैटर्न की हम लोग बात करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड अबाउट ऑटोमेटा? यस, आप लोगों में एक सब्जेक्ट होगा ऑटोमेटा नाम का, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? यस, प्लीज़ रेस्पॉन्ड. हैव यू? नो. ओके, ठीक है. बट फिर भी सपोज, ओके, ठीक है, आई अंडरस्टूड सर. नाउ देर विल बी, सपोज इफ आई एम टेकिंग वन वर्ड like we all have, not in computer fundamental,
ये आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है सर, अलग से बीटेक में आई थिंक आप लोगों को पढ़ाया जाता है. ओके, खैर खैर ठीक है. See, we are talking about sir, like suppose one fruit name which we have provided sir, papaya. The people are used to like जो छोटे kids होते हैं, they are used to learn this spelling like papaya. they used to do such things. Yeah. So this one word which we have provided here, papaya. In this one, if I would say, can you please tell us, sir, how many number of patterns which are generated? So one pattern, if I'm going to ask you, sir, this particular is a substring available in this string papaya. So this is a substring, right? PAPA, right? So in this one, can you tell me how many number of times this PAPA has been generated? Yes sir. How many number of occurrences is available? You would say sir, one time the occurrence will be available. Okay, very good. Then if again I am going to ask you, there is one more pattern which has been generated. That is what? Can you tell me, sir, how many number of times this P has been occurred? ये जो P का occurrence है, ये कितनी बार आया है? P का occurrence कितनी बार है? You would say sir, 3 times this P has been occurred. Okay. If I'm going to ask you, sir, can you tell me how many number of times the occurrence of this PA has been generated? Yes, PA. So you would say, sir, this PA has been generated PA twice. Clear or not? So this is what your patterns are. और ये पैटर्न किसी एक का ही तो पार्ट है. बिल्कुल ठीक है. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ, लाइक वी ऑल आर, लाइक हम सभी को पता है कि अगर मैं बोलूँ एक मोबाइल नंबर, क्लियर. सो अगर मोबाइल नंबर की बात करता हूँ, सो मोबाइल नंबर और अक्रॉस द ग्लोब सभी का एक अपना पैटर्न है. बट अगर इंडिया की बात करूँ, सो इंडिया में जो मोबाइल नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के होते हैं सर? जनरली 10 डिजिट्स के होते हैं. 10 डिजिट्स के आपके मोबाइल नंबर्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है. बट इसी में ही मैं अगर आपसे बोलूं कि जो भी आपके मोबाइल नंबर हैं उनका सीक्वेंस कैसा होता है, आप लोग इवन मोबाइल नंबर अगर आपको दिखा कर दिया जाए तो आप लोग देखकर आप लोग बता देते हैं दैट और ये जो डिजिट लिखा हुआ ना, ये तो कोई मोबाइल नंबर है. कैसे पता लगता है? क्योंकि राइट नाउ आप लाइक अगर हम बात करते हैं तो कोई भी मोबाइल नंबर सर कैसे स्टार्ट होता है? सी, जो उसका जो बिगिनिंग लेटर होता है वो कौन सा होता है? बिगिनिंग सर डिजिट आपका 9 होता है कि नहीं होता? इट कुड बी 9 ऑल्सो. और समटाइम्स जो सीरीज़ होता है, जो भी आपका सीरीज़ होता है वो 8 की सीरीज़ भी होती है, वो आपकी 8 की सीरीज़ भी होती है. ठीक है. समटाइम्स आपकी जो आपकी सीरीज़ होती है दैट कुड बी ऑफ 7 एज वेल, राइट. इस समय प्रेजेंट में so that could be of 7 as well and that could be of sir 6 as well. So present में आई थिंक इंडिया में जो मोबाइल नंबर की जो सीरीज़ जो चल रही है वो कुछ ऐसी सीरीज़ चल रही है. यस और नो सर? बहुत से लोगों के आप लोगों ने मोबाइल नंबर देखे होंगे, राइट. सो इट कुड बी लाइक 9 8 7 6. सो ये आपका मोबाइल का सीरीज़ है. बट अभी तक कोई भी सीरीज़ 0 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं सर स्टार्ट हुई है ना. लाइक 0 से कोई मोबाइल नंबर आपका नहीं स्टार्ट होता है, 1 से भी नहीं स्टार्ट होता है, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं. यहाँ से अभी तक मोबाइल नंबर स्टार्ट नहीं है. अगर होगा हो तो आई डोंट नो, बट आई थिंक 5 से अभी तक कोई भी नंबर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है. No sir, mobile number I'm talking about Harshita, I'm talking about mobile number, right. No लैंडलाइन का भी अपना एक पैटर्न होता है. देयर विल बी अ पिन कोड, देन उसके बाद में बाकी 7 डिजिट के मार्क्स नंबर वगैरह. ठीक. सो खैर दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट. सो इट मीन्स सर
आप ही बताइए, इफ़ यू वांट टू चेक वेदर समथिंग विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट इज़ अ करेक्ट मोबाइल नंबर और नॉट, सो ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर कैसे जान जाता है कि ये वाकई में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है. सो फॉर दैट थिंग देयर विल बी सम पैटर्न विच हैज़ टू बी चेक्ड, so that will be there. Suppose similarly if I am talking about आप सभी लोग ईमेल वगैरह आप लोग खोलते हैं. ईमेल में कभी कभी आप लोग ईमेल आईडी अगर गलत डाल देते हैं तो आपसे तुरंत बोलता है कि hey you have user you have not provided an correct email, right? So try to provide a correct email address, right? So how we can do that, sir? Because email id, email is also containing some particular pattern, like sir, there will be some particular prefix, like I would say some any other admin I have provided here. So admin @ is mandatory, right? ऐसा कोई भी ईमेल नहीं है जिसमें @ का यूज़ ना होता हो. Clear? So you have provided here. Okay. After this one admin @ and then after this something is necessary, some domain name is necessary, then again .com is mandatory, like this dot representation is mandatory. यानी कि आपके एक email के अंदर we all know that there will be some particular text will be there, and after that text one after that text position one @ symbol will be there, then again some text will be there, right? Then after this one dot representation is mandatory. After that dot representation there will be some text will be there, or instead of that text I would say some any .com or any .in or any extension will be provided to you all, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इस तरीके का आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न जनरेट होता है. Clear everybody, sir? So this type of work actually will be done in your regular expressions. Clear? So what are the things which we will use in our regular expression? Regular expression का और क्या क्या टास्क है, क्या क्या वर्क है, कैसे हमारी एप्लीकेशन को ये और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, प्लीज़ सर उन सारी चीज़ों को डिस्कस कीजिए. सो डेफिनेटली सर हम लोग उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं. ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर. ओके, नाउ लेट्स सी. आई थिंक थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों को कुछ हिंड्रेंस वगैरह सुनाई पड़ेगा. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, क्योंकि सम वर्क इज़ गोइंग ऑन, सो दैट्स वाई थोड़ा सा हैज़ार्ड रहेगा वीडियो में, ऑडियो में. ठीक है, खैर. See, so if we talk about our regular expression, are you getting any kind of disturbance in my audio? Yes, some background noise is there. Okay, great then. फिर वो खाली मुझको ही सुनाई पड़ रहा है. ठीक है, ठीक है. ओके, सो अगर हम बात करते हैं like regular expressions की, so try to observe it. See, if we want to represent the group of strings according to a particular pattern, then we should go for regular expressions, right? For example, mobile number, email ID, and such things are available, which I have already discussed with you all. Now, regular expression is basically a declarative representation of the strings. What is the main important applications of regular expressions? See, which has been provided to you all. That is what validation. That is what one major important thing. Clear? You might have heard the name of validation. That what is the meaning of validation? Right, I'm telling you, validation means suppose if like you are sitting on your examination room, right, and one answer script has been provided to you all. In that one you will have to fill your entire detail onto this one. So उसमें लिखा हुआ है that the examinee has to fill his or her marks, his or her name in block letters,
एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने बाई चांस उन्होंने पढ़ा ही नहीं और उन्होंने स्मॉल लेटर से डिटेल को फिल कर दिया, देन सडनली यू विल बी स्कोल्डेड बैडली बाय योर टीचर, राइट। तुम्हें इतना भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लॉक लेटर्स में लिखना है और तुमने यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख रखा है। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता सर? आपकी क्लास में कुछ लोगों को ऐसे डांट पड़ी है कि नहीं? यस, द फर्स्ट टाइम जब आप नए नए एकदम फर्स्ट ईयर में आए होंगे, है ना। सो ब्लॉक लेटर में लिखना होता है, मैनी ऑफ देयर आर, बहुत से लोग हैं सर, ठीक है। यस, सो दैट मीन्स क्योंकि वो जो पर्टिकुलर आंसर स्क्रिप्ट को भेजा जाएगा क्रॉस चेक करने के लिए, सो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो वो यही चेक करेगा, वो तो नेम को कैपिटल लेटर्स में ही रीड करेगा, आपने गलती से स्मॉल लेटर में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। सो इट मीन्स इवन दो मतलब सेम है, स्मॉल में आपने XYZ लिखा हुआ है, कैपिटल में आपने XYZ लिखा हुआ है, नाम तो नहीं बदल जाएगा ना, मीनिंग तो नहीं बदल जाएगा, लेकिन रूल्स आर रूल्स सर, क्लियर। सो आपको अगर बोला गया कि आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है तो आपको फॉलो करना ही होगा। लाइक सपोज डेटा वैलिडेशन की बात करें, समटाइम्स इट हैज़ बीन टोल्ड लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वन नंबर, मैंने सपोज यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, क्लियर, मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बट यही बताइए किसी ने अगर यहाँ पर अगर ये अगर लिख दिया हुआ है तो क्या गलत हो गया? बिल्कुल नहीं सर। ये भी सही है। सो 5 बोलिए या 5th बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन वैलिडेशन का मतलब है एग्जैक्टली जिस वे में बोला गया है उसी वे में आपको चीज़ें लिखनी होंगी। कैन यू गाइज प्लीज़ रेस्पॉन्ड that what is the very much famous technology which is used for the data validation earlier? Like see, regular expression is also used for the data validation only, that is what is its application is in Python. We are going to utilize this one, बट अगर हम बात करें नॉर्मली एक आपकी बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा वैलिडेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। यस, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी सर? we all have used that technology as well. आप लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर में थ्योरी में आप लोगों ने लिखा भी होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML and XML? हैव यू heard the name of XML? Yes sir, have you heard the name XML? Okay, so why do we use XML? XML is used for the data validation only, है ना। Okay, so that XML is used basically for the data validation, right? Very good sir. Now in this data validation का मतलब क्या? अच्छा आप ही बताइए दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग सर। समटाइम्स लाइक अभी आप किसी लाइक एक एप्लीकेशन ओपन है, अब उस एप्लीकेशन पे अगर आप लोगों से डेटा एंट्री मांगता है कि ठीक है आप यहाँ पर अपना रोल नंबर, सपोज एक फील्ड नेम एक अवेलेबल है और फील्ड नेम अवेलेबल है इस तरीके से, रोल नंबर नाम की फील्ड है, आपसे बोला कि प्लीज़ आप यहाँ पर आप रोल नंबर आप फिल कीजिए। सो यू हैव एंटर्ड ईयर, हाँ आपने लिखा रोल नंबर इज़ 880। सो ये तो नंबर के फॉर्म में सही है, बट कोई स्टूडेंट है उसको इंग्लिश में टाइप करने में बहुत मज़ा आता है, सो दैट स्टूडेंट हैज़ टाइप्ड हियर लाइक 800। इज दिस प्रॉब्लम विद एवरीबडी? माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? माय वॉइस इज क्लियर? Okay. See, few of you are getting some hazard, हाँ बाकी लोगों का सही आ रहा है। इट मीन सर कुछ ना कुछ आपके एंड पर डिस्टर्बेंस है, वरना सबको एक साथ प्रॉब्लम होती, ठीक है। ओके खैर ठीक है। नाउ सी इफ somebody has written is like 880, राइट, 880 किसी ने इसी सेम रोल नंबर को इस तरीके से लिख दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ
कुछ लोग हैं जो जो इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं. somebody is writing like 880. कुछ लोगों ने ऐसे भी लिख दिया हुआ है. तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपका जो भी डिटेल है आप लोगों के पास जो प्रोवाइड कर रखी गई है, सर डेटा जो है वो एक वैलिड डेटा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको पढ़ें कैसे. ठीक है. सो इन चीज़ों से बचने के लिए ही XML टेक्नोलॉजी केम इनटू पिक्चर, रेगुलर एक्सप्रेशंस केम इनटू पिक्चर, कि जैसे बोला जाए, जितना बोला जाए उतना करने का, उससे ज़्यादा नहीं करने का. ठीक है. So that is what your regular expression is, which is all about. I hope you all are able to have at least some idea that what is data validation. Data validation मतलब आपको बोला गया है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म पे आपको काम करना है. Okay. Now खैर सर, moving further, say राइट. रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आपका वो एक कंप्लीट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है. सर दूसरा एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल और किस लिए किया जाता है, सो सी वी जनरली यूज़ द रेगुलर एक्सप्रेशंस टू डेवलप द पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशंस. We generally used it to develop the pattern matching application. Sir, what is that pattern matching application? मैंने अभी आपको बताया, मैंने ऊपर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर लिया हुआ था, ईमेल आईडी लिया हुआ था. वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक गिवन स्ट्रिंग तो यही है ना, गिवन स्ट्रिंग तो आपको एक टारगेट स्ट्रिंग दे रखी गई है कि ये कोई स्ट्रिंग है. अब हम चेक कर रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर अगर ये 2-4 चीज़ें अवेलेबल है, @ अवेलेबल है, डॉट अवेलेबल है, कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है, तो ये आपका एक नॉर्मल ईमेल आईडी होगा, यानी पैटर्न मैच कर रहा है. अगर पैटर्न मैच कर रहा है तो सामने वाले यूज़र ने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एकदम सही है. बात समझे कि नहीं सर? सो दैट इज़ व्हाट आवर पैटर्न इज़. ओके. सो सर दैट इज़ व्हाट द सेकेंड एप्लीकेशन. नाउ थर्ड वन इज़ सर कंपाइलर फेज. व्हाट इज़ दैट कंपाइलर फेज सर? कंपाइलर फेज का मतलब क्या है, कैसे वर्क करता है? कंपाइलर फेज का मतलब होता है कि सपोज समटाइम्स आप लोग जब कभी अपनी एप्लीकेशंस को लिखते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को सर आप लोग जब लिखते हैं, सो उसमें सर किस तरीके से वर्क करता है. आप लोगों ने देखा होगा, सी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा, आपने जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा, आपने और भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े होंगे. वहाँ पर कुछ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ न कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको कि आप लोग नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं. बिगिनिंग में हम लोगों ने लैंग्वेज फंडामेंटल पढ़ा हुआ था, नेमिंग कन्वेंशन पढ़े हुए थे कि सर कभी भी पाइथन के अंदर आप लोग अगर कोई भी वेरिएबल अगर प्रोवाइड करेंगे, सो वेरिएबल का नेम कभी भी किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. करते कि नहीं करते? सी like right now here at this place I am going to define one variable. Suppose I have provided here like 7 name is equal to 7 name is equal to, and I have provided here Krishna. Make it enter. What is the output, sir? It is saying invalid syntax. It is saying sir invalid syntax. So क्या मतलब हुआ इसका invalid syntax का? यानी गड़बड़ है ना. आपका इसके अंदर जो भी इंटरप्रेटर लगा हुआ है, जो भी कंपाइलर लगा हुआ है, उसने सर तुरंत बोल दिया, हे डेवलपर यू हैव प्रोवाइडेड सम रॉन्ग वैल्यू, राइट? You are not supposed to provide this kind of a variable. Clear or not, sir? So it means see I have just मैंने इसको 7 को हटा दिया. Now if I am going to print this name, we are getting some output or not? Yes sir, we are getting some output. So it means it is working. So why that 7 मैच है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चल गया? हाँ, इंटरप्रेटर को ये जो आइडल आपका जो टूल अवेलेबल है, इसको कैसे पता चल गया कि अरे यार 7 लिख दिया, डेवलपर ने गलती हो गया. हाउ इट इज़ वर्किंग सर? वो मैच कर रहा है किसको? ये जो आपने लिखा था ना 7 नेम का मतलब क्या था?
सेवन नेम का मतलब था कि आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कंप्लीट क्या है सर, आपका एक वेरिएबल है। और अगर आप लोग कभी भी किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल सर चेक करता है, किसको चेक करता है, ये वेरिएबल के लिए एक ऑलरेडी पैटर्न लिखा गया है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बैकग्राउंड में, ठीक है। और वो पाइथन डेवलपर्स ने लिख रखा है क्या, कि अगर कोई भी डेवलपर अपनी तरफ से अगर कोई भी वेरिएबल नेम को अगर प्रोवाइड करता है तो ऐसी सिचुएशन पर सर वो एक जो भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, अगर उन पैटर्न्स को कम्प्लीटली मैच नहीं करेगा तो उसको वेरिएबल बनने का कोई हक नहीं है। आई होप अंडरस्टूड सर एवरीबडी, you are able to understand sir what I am trying to say, clear or not? Okay, ठीक है। now after this one so what does it mean sir, वो पैटर्न को चेक करता है, ठीक है। let's see sir, see सो कंपाइलर फेज का मतलब क्या है, तो ये सारा काम तो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही तो कर रहा है, कि जो भी सिंटैक्स लिखा हुआ है, इनवैलिड सिंटैक्स आ गया, ये कौन करता है सर, कंपाइलर फेज। अच्छा, इन द बिगिनिंग ऑफ माय क्लासेस, जब से हम लोगों ने शुरुआत में पहली या दूसरी क्लास ली थी, सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल दैट व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेक्सिम्स, राइट और नॉट। देन वी आर गोइंग टू कंपाइल करते हैं सर। कंपाइलेशन फेज यू नो, हर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका एक कंपाइलेशन फेजेस होता है। वो कंपाइलेशन फेजेस में क्या क्या होता है, पहला तो होता है आपका सिंटैक्स एनालिसिस फेज। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट कंपाइलर डिज़ाइन। क्या ये सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, कंपाइलर डिज़ाइन? यस, कंपाइलर डिज़ाइन, ओके, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप नेट पर देखिए what is compiler design, clear? I'm not that much expertise in that one, but yes, कंपाइलर डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वन सब्जेक्ट सर, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कंपाइलर वर्क कैसे करता है, क्लियर? सो सी देर आर फ्यू फेजेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सो फर्स्ट फेज इज़ योर सिंटैक्स एनालिसिस फेज। ओके, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सी आई थिंक मैंने इससे रिलेटेड कंपाइलेशन फेज से रिलेटेड एक कंप्लीट इंटरनल वीडियो प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को ऑन द ऊप्स के जावा कंसेप्ट में, राइट। जो मेरे वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है जावा की, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कि इंटरनली कैसे वर्क करता है। टोटल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक फेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो यू कैन रेफर टू दैट वन ऑल्सो, ओके। अगर मुझे टाइम मिलता है मैं देखता हूँ, उसके लिए लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी उसको देख लीजिएगा। नाउ खैर, if we are talking about sir syntax analysis phase, so syntax analysis phase कैसे काम करता है? see, जब बिगिनिंग में आप लोग कोई भी आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप लोग लिखते हैं, सो उस स्ट्रिंग को लिखने के लिए वहाँ पर जब आप लिखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि सर सबसे पहला काम जो होता है वो होता है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्कैन करना और टोकन्स असाइन करना। मतलब सर नहीं समझे, लाइक सी, अगर मैं बोलूँ आपने कोई भी पर्टिकुलर आपने टर्म आपने लिखा हुआ है सिंटैक्स एनालिसिस फेज में, सी लाइक मैं बोलूँ एक सिंटैक्स की अगर किसी भी अगर मेथड को अगर डिफाइन करना है, आप सभी को पता है दैट डेफ कीवर्ड को लिखना ज़रूरी होता है। एंड डेफ के बाद आप कोई भी नेम आप प्रोवाइड करते हैं, देन उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाने ज़रूरी होते हैं, देन ये कोलन लगाना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट जब आप इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर आपका एक मेथड जनरेट हो पाता है। तो सर इस चीज़ को मैच कौन करता है, इसको कैसे सर किया जाता है? सो पहला काम क्या होगा सिंटैक्स एनालिसिस में, कि जो सिंटैक्स आपको बोला गया है क्या वो सही लिखा हुआ है कि नहीं। अगर सही लिखा हुआ है, अगर वो सही से अगर लिखा गया है, देन 100% इट विल
वर्क, राइट। सो इसका मतलब क्या है सर, सिंपल सा, आप लोगों ने यहाँ पर सी जो भी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, सिंटैक्टिकल कीवर्ड्स को लिखना ज़रूरी है। आपने गड़बड़ कर दिया, प्रॉब्लम विल बी जनरेटेड, राइट। सो एट दिस प्लेस ऑल्सो टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, यही जैसे आपने एक वर्ड लिखा हुआ है, लाइक डेफ आपने लिखा हुआ है, ऐड आपने लिखा हुआ है, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपसे बोला कि x इज़ इक्वल टू सपोज मैं बोलूँ 20 माइनस 30 लिखा हुआ है, क्लियर, एंड देन सडनली इफ आई एम राइटिंग हियर दिस रिटर्न x, राइट। सो क्या हमने सारे के सारे जो भी हमारे पैटर्न हैं, ठीक है, जो भी तरीका है इसको लिखने का, हमने सही से लिखा हुआ है? बिल्कुल सर, हमने सही से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ है। टोकनाइजेशन मतलब छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड करना, लाइक डेफ पार्ट अलग कर दिया, ऐड पार्ट अलग कर दिया, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। क्यों? ताकि वो खुद से उनको मैच कर सके, ठीक। खैर सो पहला पार्ट जो है आपका वो है सिंटैक्स एनालिसिस फेज, और सिंटैक्स एनालिसिस फेज में सिर्फ यही, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट योर कंसेप्ट इज। सिंटैक्स एनालिसिस के फेज में सिर्फ यही चेक किया जाता है कि जो भी आपका प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, वो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट और लाइक उसके सिंटैक्स और आपने जो यूज़र ने जो भी सिंटैक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आर दे सेम और नॉट। इफ़ दे आर सेम सो देर विल बी नो प्रॉब्लम, इफ़ दे आर नॉट सेम यानी उनके बीच में जो पैटर्न है वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं, then there will be some problem which will be generated, right? Okay, khair sir, next point if we are talking about, after this syntax analysis phase there is also one semantic analysis phase. Sir, what is this semantic analysis phase? इसमें क्या होता है? See the semantic analysis, I'm not sir मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा some sort of idea I'm going to provide you. Semantic analysis phase is like, सर आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ था कि जो भी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उसकी पर्टिकुलर रेंज कितनी होती है, उसकी पर्टिकुलर रेंज कितनी होती है। सो वी ऑल नो दैट रेंज इज़ लाइक अगर मैं पाइथन में बोलूँ 0 to 256, राइट, 0 to 256 तक के लिए रेडीमेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। मैं आपसे अगर बोलूँ कि लाइक सपोज एक वेरिएबल है 1, हाँ, लाइक x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1, मैं दोनों को अगर ऐड कर दूँ, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1, मैंने दोनों को ऐड किया, x प्लस वाई, सो न्यू वैल्यू विच विल बी जनरेटेड 2। सो ये 2 जो है ये भी रेडीमेड ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यस सर, ये भी रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। ये क्या उसी रेंज में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 255, दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 255। अभी बताइए, मैं कर दूं x प्लस वाई, तो क्या ये दोनों आपस में ऐड होने के बाद इंटीजर वैल्यू तो प्रोड्यूस करेंगे, बट क्या ये उस रेंज में रहेंगे? नहीं सर। तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? सिमेंटिक एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ द बाउंड्री वैल्यूज़, राइट, जो कि आपको प्रोवाइड कर रखा है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बाउंड्री इसकी ये है। अगर उस बाउंड्री के बाहर अगर कुछ भी जा रहा है, सो दैट विल बी लाइक आपको प्रॉब्लम जनरेट करने लगता है। सो दैट इज़ व्हाट योर सिमेंटिक एनालिसिस फेज। सो यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को चेक करते हैं। देन अगर हम बात करते हैं सर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, व्हाट इज़ दैट इंटरमीडिएट कोड जनरेशन सर? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को सर कन्वर्ट करना चालू करता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से स्पेसिफिक कोड्स में। दैट इज़ व्हाट योर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोड इज़। देन सर कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज आपका कैसे वर्क करता है? कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज विल लेट यू नो दैट जो भी आपका कोड जनरेट हुआ है, राइट, आफ्टर लाइक कंपाइलेशन के बाद या आफ्टर लाइक सी दिस वन, कि आपने जो भी हाई लेवल कोड लिखा था उसको इंटरप्रेट कर लिया गया है। देन उसके बाद जो कोड आपका जनरेट होता है उसको ऑप्टिमाइज़ करने की, श्रिंक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में होती है सर? किस फेज़ में होती है? कोड ऑप्टिमाइजेशन में। जब ये सारे फेजेस आपके प्रॉपरली वर्क कर जाते हैं, ठीक है, तब कहीं आपको बताता है हाँ कोड सही है, यानी कि कोई भी सिंटैक्स का प्रॉब्लम नहीं, यानी कि आपने जब एक कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आपने एंटर मारा और उसको एंटर को मारते समय सर आपका आउटपुट किस तरीके का प्रोड्यूस होगा? सो योर लाइक कंप्लीट कोड विल बी देयर, राइट, कि कोई एरर नहीं आया। सो ऐसी सिचुएशन पर आपका ये वर्क करता है।
राइट सर। हमको तो लगता है कंपाइलेशन फेज कितना छोटा सा होता है, हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, एंटर मार दिया, इट इज़ वर्किंग। हाँ, बट सर ऐसा जनरली होता नहीं है, उसके इंटरनली इतने सारे आपके फेसेस वर्क करते हैं। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट वन, यू नो, जितने भी आपके ट्रांसलेटर्स आपके ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर है, ये सभी के सभी ट्रांसलेटर रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसी वजह से ये लोग बता पाते हैं कि एरर प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने बाउंड्री वैल्यूज़ आपने बड़ी प्रोवाइड कर रखी हुई हैं, राइट। सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी जनरेटेड। सिमेंटिक एनालिसिस, आई थिंक वर्षा दीक्षित हैज़ आस्क्ड और समवन एल्स हैज़ आस्क्ड। ओके, सो ट्राई टू ऑब्जर्व इट। सिमेंटिक एनालिसिस मीन्स लाइक सपोज मैं आपसे बोलूँ कि आपकी एक पर्टिकुलर रेंज अवेलेबल है, दैट रेंज विल बी लाइक कि x इज इक्वल टू 256 से ज़्यादा वैल्यू आप नहीं लिख सकते। सो आप नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते, बट सपोज आपने एक वैल्यू लिया x इज इक्वल टू 256 या 255, दूसरी वैल्यू आपने लिया y इज इक्वल टू 3, और सडनली आपको ज़रूरत पड़ गई कि कल की डेट में आपने किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो द मोमेंट आपने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो x की वैल्यू 255 थी, प्लस 3 आपने ऐड कर दिया हुआ है, y की वैल्यू 3 है, दोनों ऐड होने इंडिविजुअली तो दोनों ठीक थे, लेकिन जैसे ये ऐड हुए तो z की वैल्यू 255 या 256 से ज़्यादा हो रही है। सो दैट बाउंड्री वैल्यूज़ विल बी मोर देन दैट और नॉट। सो ऐसी सिचुएशन की चीज़ों को भी चेक करने के लिए एक एनालिसिस फेज आपको दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाट योर सिमेंटिक एनालिसिस फेज। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। Yes, is that clear? Yes sir, is that clear? Okay, ठीक है। So this one ये जो आपका ट्रांसलेशन फेज है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा गया है, वो सर किस तरीके से वर्क कर रहा है, which has been described to you all. Okay, now sir, after this one there is also one more application, that is what, to develop the digital circuits। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स को क्रिएट करने के लिए भी आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है। लाइक आपका जो सब्जेक्ट है, मैंने जिस पे बात कर रहा था, लाइक ऑटोमेटा में है, ठीक है, मूरे एंड मिले आपकी कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे गए थे, ठीक है, डिजिटल सर्किट्स में। सो उसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं। सर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जितने भी आपके होते हैं, जैसे TCP IP है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होता है सर? प्रोटोकॉल्स भी बेसिकली ईच एंड एवरी वैलिडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। तभी तो इसीलिए सर नेटवर्किंग में आपके जितने भी HTTP प्रोटोकॉल हैं या जितने भी आपके नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर URL बोला गया है तो URL में www. कोई नेम डॉट और फिर डोमेन नेम प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, या सेट ऑफ रूल्स। वो सेट ऑफ रूल्स क्या है, इन्हीं पैटर्न्स को ही मैच करते हैं, राइट, शिखा, ठीक है। सो सच थिंग्स विच आर बीइंग अवेलेबल। सो सर, इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाई डू वी यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस, then I hope you all will be able to respond, right? So these are the very main areas which are being described to you all. I hope everybody is able to understand, sir, right? Okay guys, one more thing. See, I don't want to, for the today's session, sir, for the today's session in my regular expressions topic, so it will be there only. Please go through with our video, sir.